Okay, let's begin with our session today. We have already revised what we had studied in our last session. We studied about the properties of metals and non-metals. I still would want Pashwa to repeat the same. Can you give me three properties of a metal, Pashwa? Hard, sonorous, ductility. What is ductility? Ma'am, ductility means Yes. What is ductility? ductility. The ductility means drawn into wires. Is he correct? No? Would you like to answer then? Yes, ma'am. Ductility means to uh, beaten the metals into thin sheets. Thin sheets. Rudra, are you sure about it? What property of a metal says that it can be drawn into thin sheets? Malleability. Very good. It is malleability and not ductility. While what Pashwa said, that was absolutely correct. Okay. What did he say, Granth? Ma'am, metals which can be drawn into the metals which can be drawn into wires is known as ductility. Okay, perfect. Fine. These are the first 20 elements of a periodic table. Do you know what are elements? Who will describe what are elements? What is this? आप बता दो रुद्र. क्यों शर्म आ रही है? नहीं अभी रिस्क नहीं लेना. अभी रिस्क नहीं लेना है. मुग्धा, can you tell me what are elements? चीजें. चीजें. Metals. Okay, metals are types of elements. Yes. No. What are atoms? हाँ, 7th में आया था तो याद है. What are atoms? Yes. मैम एटम्स स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको कंबाइन करके एक चीज बनती है. Okay. Can you give me one example for the same? मैम कुछ भी जैसे ये टेबल. Okay, excellent. Very good, Neeraj. कुछ भी जैसे कि ये टेबल, everything is made up of atoms around us. ठीक है. And then what are elements? Elements are those atoms in their purest form. Okay, in their purest forms. Fine. These are the first 20 elements of the periodic table. Rest of them you can see on the wall. We have all the 118 elements given there. I want you to read all of them. Yes. I want you to read the elements. First, H. Just read the names like hydrogen, helium, lithium, beryllium. दिख नहीं रहा है वहां से. हीलियम लिथियम Okay. अच्छा, आपको आता है वो. तो चलो. क्यों क्यों नहीं बोलना है? अरे एत. Yes, Rudra. You made a song out of it, right? Yes, please. First hydrogen, second helium, third lithium, It's lithium. It's lithium. fourth beryllium, Beryllium. Yes. fifth boron, Boron. sixth carbon, Hmm. nitrogen, eighth oxygen, Hmm. ninth fluorine, tenth neon, 11th sodium, 12th magnesium, 13th aluminium,
Mm-hmm. 16 sulfur, 17 chloride, 18 argon, 19 potassium, 20 calcium. Okay. So these are the first 20 elements in your secondary grades. You will be just studying about these elements. You will not study about more than the first 20 elements. Okay. We are done with the physical properties of a metal. What do we understand by physical? Physical का मतलब क्या बोला था मैंने? अपीयरेंस. यस, वेरी गुड. सो आउटर अपीयरेंस से कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमने समझ ली, वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट. केमिकल का मतलब, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, लिखा हुआ है ना, H मतलब हाइड्रोजन, हाँ H से केमिकल. ऐसे केमिकल. ये रुद्र, ये क्या लॉजिक था? ओके. सो कंपोजिशन, राइट? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपोजिशन, राइट? हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें हैं वो किस चीज़ों से बनी है. ठीक है. दोज आर कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? Here we are trying to understand chemical properties of that particular thing. मतलब कि ये रिएक्ट कैसे करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों करेगा, ये सब कुछ हमें समझना है. फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. चेक योर पेज नंबर 46. Reaction with oxygen means there are elements which react with oxygen in certain manner and they give us a output, they give us some product which shows us कि अच्छा इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, राइट? हैव यू एवर सीन रस्टिंग? रस्टिंग देखा हुआ है? व्हाट इज रस्टिंग? हम ऑक्सीजन और वाटर के वो मिक्सचर होता है ना, उससे रस्ट होता है. वो आयन पे होता है. काट खाना. हाँ, यस, इन गुजराती विषय काट लागी गयो छे एंड ऑल ऑफ दैट. रस्टिंग, वेरी गुड. यस, आप कुछ बोल रहे थे? नो? ओके. तो ये चीज कैसे होती है और क्यों होती है, वी लर्न दैट इन केमिकल प्रॉपर्टीज. बिफोर दैट we have already done what are the physical properties. We have also listed them in the previous session. Yes, Arav, can you read out the properties of non metals? Louder. dull, poor conductors, non-ductile, Brittle. brittle, Yes. may be solid, liquid or gaseous at room temperature, transparent as a thin sheet, not sonorous. Mm-hmm. Is there anything that we don't understand here? Do we know what is brittle? तो फिर क्यों बोला कि हाँ सब समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो पूछो ना कि ये शब्द क्या है, मैं तो कभी सुना नहीं है. ओके, व्हाट इज ब्रिटल? ब्रिटल इज समथिंग दैट इज हार्ड बट इट कैन बी ब्रोकन डाउन. ऐसा तो है नहीं कि हम बोल रहे कि नॉन मेटल है वो हार्ड नहीं है, तो क्या ऐसे वो ऐसे पानी की तरह फैल के बैठे होंगे? नहीं, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन सम वॉट सॉलिड फॉर्म बट दैट फॉर्म कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन. वो इजीली टूट सकता है. ठीक है, तो उसको बोलोगे नॉन मेटल और उसका एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल होना, राइट? फाइन. Metals and non-metals, again the exceptions and all of that. In our previous session we had discussed about few exceptions. Do we remember about mercury? Yes, ma'am. What about mercury? Mercury is a metal, but it is a liquid form in room temperature. Excellent. Mercury is a metal but it is not hard, it is liquid at room temperature. That was one of the exceptions. Do you remember anything about sodium? Yes, ma'am. What? Sodium can be cut by a knife. Sodium and potassium. Potassium.
Yes, so sodium and potassium are also metals which can be broken down into pieces with the help of a knife. Okay, that are the exceptions, but that doesn't mean that they are non-metals. They are metals. Again, for non-metal, we have a very important example. Mugdha, can you give me that example for exception? Yes. sulfur, carbon, oxygen, nitrogen. Those are the examples. I'm asking for the exceptional example. ना बीजू कौन से बना भाई मैं मेरे को पता है Yes. मुग्धा बोर्ड ये पैनल पे क्या लिखा है? ग्रेफाइट. So that is an exception where? In conductor of heat, conductor of electricity. एक्सेप्शन ग्रेफाइट और For the hardness you can, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट here we are talking about hardness, हार्डनेस right? Hardness. Okay, so these are the exceptions. Soft metals, sodium and potassium, it can be broken down into pieces with the help of a knife. Next, in non-metal, conducting electricity, you have graphite. When we say conducting electricity, we also consider conducting heat. Metal in a liquid state, mercury at room temperature. Okay, have we listed down this in our books? Who said no? We have. Okay, now we are moving ahead to a reactivity series. अब ये reactivity series क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि ऐसी सीरीज जिसमें सीक्वेंस वाइज हमने एलिमेंट्स लिखे हैं. द टॉप मोस्ट एलिमेंट दैट यू सी इन दिस सीक्वेंस इज मोस्ट रिएक्टिव. एज यू गो डाउन द लिस्ट यू गेट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स. मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? पो लिखा हुआ है. ठीक है, बट हियर वी मीन पोटेशियम. पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? पी होता है? नहीं, नहीं. वेरी गुड, एक्सीलेंट, इट्स के. पोटेशियम का सिंबल होता है के. Yes, depending upon their Greek and Latin words, you'll learn about it later, but as of now just remember that it has a symbol called K, right? Means कि यहाँ पे पोटेशियम जो है सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है. Okay? When we say bhai, what do we mean? कैल्शियम Bhai, आज calcium, beryllium. बोरॉन, छाप छाप के लिखा है Okay, okay. For this reactivity series, sir had asked us to call him. So पाशवा, आप सर को बुला के आ सकते हैं. ये मतलब पूरे बरेलियम या होगा ना. अच्छा, बोरॉन इसमें लिखा है पर क्या दिख नहीं रहा है? मैं भाई थोड़ी लगती आर. वो तो ब्रोमियम है बेटा, ब्रोमियम है वो. मैम दूसरा एच दिखा मेरे को अकेला एच That it, one is hydrogen, one is helium. तो शांति रखना देसी जा शांति Okay, let's welcome Parin sir. ओशो भाई का माल बोलो. ओशो भाई का माल. अरे बोलो, थोड़ा जोर से बोलो. जफर इरफान कोबरा. मैम को बोलो, बोलो मैम. एक आवाज हुई. ओशो भाई का माल. पोसो भाई का माल. जफर इरफान कोबरा. जफर इरफान कोबरा. नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे. नहीं लेंगे. तो कौन लेगा? टिन लेगा. कौन लेगा बच्चों? टिन लेगा. हनी सिंह को इधर सिल्वर लिख दिया. मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम
पोसो भाई कमाल, जफर इरफान कोबरा नहीं लेगा, जफर इरफान कोबरा नहीं लेंगे, टिंटिन लेगा, टिंटिन लेगा, हनी सिंह को मेरा हनी सिंह को मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो। दे दो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, ओ की, ओ फॉर पोटेशियम। किसके लिए बच्चों को पोटेशियम। सो किसके लिए है सोडियम। भाई किसके लिए बच्चों, बेरियम। ये किसके लिए कैल्शियम। तूने बेरिलियम बोला। एम किसके लिए मैग्नीशियम। एम किसके लिए एल्यूमिनियम। जफर फॉर इरफान फॉर कोबरा फॉर कोबाल्ट, NaHI फॉर निकल, एंगे फॉर लेड, टीन, हनी सिंह फॉर हाइड्रोजन, को फॉर कॉपर, सिल्वर फॉर सिल्वर, गोल्ड फॉर गोल्ड। ये क्या रहेगा बच्चों, प्लेटिनम। कोई डाउट यहाँ पर, समझ में आया सबको? चलिए अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ओ फॉर पोटेशियम, ओ फॉर सोडियम, भाई फॉर बेरियम, मैम नहीं बोल रहे। ओ फॉर पोटेशियम, सो फॉर सोडियम। अरे मैं हाँ फ्रेम में तो आओ, ऐसा थोड़ी चलता है। आपके पास माइक है, हमारे पास कुछ नहीं है। ओ फॉर पोटेशियम, सो फॉर सोडियम। मैम आप बोलोगे, मैं बोल ही रही हूँ सर। आप थोड़ा जोर से बोलो, माइक पे आपका आवाज ज्यादा आएगा। ओ फॉर पोटेशियम, सो फॉर सोडियम। क्या बोल रहे हैं सर मैं जोर से ही बोल रही हूँ। आप बुलवाइए यार, आप बुलवाइए। ओके एवरीवन, पो फॉर पोटेशियम, सो फॉर सोडियम, बाई फॉर बेरियम, सी फॉर कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, एल फॉर एल्यूमिनियम, जेड फॉर जिंक, इरफान फॉर आयरन, कोबरा फॉर कोबाल्ट, नहीं फॉर निकल, लेंगे फॉर लिथियम, टिन लेंगे फॉर हनी सिंह फॉर को फॉर मेरा सिल्वर फॉर गोल्ड फॉर प्लेटिनम दे दो। वेरी गुड, रिपीट अगेन। पोसो भाई कमाल, जफर इरफान कोबरा नहीं लेंगे, टिन लेगा, हनी सिंह को मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो। क्या सर? बोलो दे दो। चलो बाय गाइस। ओके लेट्स कंटिन्यू। तूने बेरिलियम बोला था बेटा, ये बेरियम है। बोरोन अलग, बेरियम अलग, बेरिलियम अलग, सब अलग अलग है। हाँ इतना सारा ही होगा ना भाई बहन। बेरिलियम का बेरिलियम का भाई बेरियम, या बेरियम की बहन बेरिलियम, क्या रखना है? भाई बाय 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 बाय। अच्छा 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 ओके। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आरव आई वांट यू टू रीड ऑन पेज नंबर 46। Reaction with oxygen. यस We are familiar with the phenomenon of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the process oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. Iron plus oxygen plus water gives magnesium plus oxygen. okay, so both the reactions that are given, they are incomplete, they are not completed. Can you see the question marks which are given? First is iron
that is called Fe. The symbol is Fe. Then you have oxygen. Oxygen gas is always written as O2. Okay. Next you have water. Water is for H2O. तो तीनों का combination होके क्या बनेगा रुद्र? मैग्नीशियम ऑक्साइड में है एक मिनट था मैं अरे मैग्नीशियम आयन ऑक्सीजन वाटर. आयन ऑक्सीजन वाटर है ना. हाइड्रोजन ऑक्साइड. हाइड्रोजन ऑक्साइड कैसे होगा? ऑक्साइड बन सकते पहली बात तो रस्टिंग थे जैसे हाय सर यस बोलो क्या होगा? अरे मैं रस्टिंग होगा पर मेरे को फार्मूला नहीं पता वो ढूंढ के लगा देंगे ढूंढ के लगा देंगे. हाँ ढूंढ के लगा देंगे. हाय बड़ा है वही जगह बेटा पर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी. अभी हम बात कर रहे हैं आयन की. Yes, what will we get? Think. Take out your notebooks and write down the equation. देखो सबसे पहले क्या दिया है? आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर. Fe2O3 हाँ बुक में से देख के बोल दो. हाँ रुद्र. अरे बहुत स्मार्ट बहुत स्मार्ट. हाँ टेक आउट योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन. that I am but you don't know that is the problem Okay, write down Fe plus O2 plus H2O means iron plus oxygen plus water. What are we trying to understand here? We are trying to understand how the metal reacts with oxygen. हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है हमारे वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं वही समझना है हमें. ये हमारा क्या है? आयन. आयन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल डेफिनेटली फॉर्म समथिंग. ठीक है. Iron oxide. Can you give me the formula? I know. Fe2 O3 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 guarantee. Fe2 O3 for iron oxide. Iron when it reacts with oxygen with water it forms iron oxide. Yes. ऑक्सीजन का O2 था इसलिए हमने Fe2 लिखा तो फिर हमने वाटर का H2O है तो फिर हमने बराबर तो है बेटा. Next we have magnesium Mg plus O2. Second लिखो. Mg plus O2 Mg प्लस O2 तो क्या होगा? मैग्नीशियम. अगर यहाँ पे पहले आयन था तो आयन ऑक्साइड बन रहा था तो अभी मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या बन? मैग्नीशियम ऑक्साइड. Mg प्लस it will give
MO2 MO2 क्या होता है? MO2 क्या होता है? MgO होता है, MgO होता है फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड. लिख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड. Okay. When a copper vessel is exposed to moist air, we are talking about copper. कॉपर किसका एग्जाम्पल था? मेटल्स का कि नॉन मेटल्स का? मेटल्स का. सो व्हेन कॉपर इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर का मतलब. तो फिर क्या होता है? मैंने क्या पूछा? क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैंने नहीं पूछा है. मॉइस्चर क्या होता है बेटा? मॉइस्चर तो पता होना चाहिए. डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा है. ओके, तो ये जो मॉइस्चर है इट्स नथिंग बट वाटर, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म. वाटर वेपर फॉर्म. In short, it's water. It is H2O, right? What are they trying to say? That copper, when it is exposed to water, what's happening? Its color is changing a bit. कौन से कलर में चेंज हो रहा है? It is changing to dull green. It is changing to dull green color. And for the same reaction is given. Please have a look on page number 47. The green material is a mixture of copper hydroxide. It is the green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. Copper carbonate is written as CuCO3. CuCO3 is for copper carbonate. And what do we have for copper hydroxide? Copper hydroxide को कैसे लिखते हैं हम? CuOH, copper hydroxide and copper carbonate. Yes. हाँ, तो उसका ये बेटा यहाँ पे तो हमने सिर्फ याद करने के लिए कॉ लिखा है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में तो कॉपर COPPER ही है, CU नहीं है. ओके, CU comes from a different Latin Greek words. Okay, so don't worry about that, we'll learn that eventually. So ये कॉपर तो हमने सिंबल नहीं लिखा है, कॉपर का सिंबल हमेशा CU होता है. CO is for cobalt and not copper. Okay. See the reaction given. Copper plus water plus carbon dioxide plus oxygen. Are we clear with the molecular symbols that are given, molecular formulas that are given? The carbon dioxide को CO2 बोलते हैं, oxygen को O2 बोलते हैं, copper को Cu बोलते हैं, right? Cu plus H2O. हाँ लिखो. Cu plus H2O plus CO2 plus oxygen. Cu plus H2O plus CO2 plus O2. It will give copper carbonate plus copper hydroxide. Did we write the third equation? Copper carbonate and copper hydroxide. ये ना बेटा, रुको मैं फिर से लिखूं. देखो यहाँ पे आएगा
प्लस CuCO3. Cu ब्रैकेट में OH इज फॉर कॉपर हाइड्रोक्साइड. CuCO3 कहाँ पे बेटा? H, क्योंकि वो हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, विच इज मेकिंग अ हाइड्रोक्साइड. ओके, हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों पढ़ी? ये जो पोसो भाई का माल, फिर क्या था? अरे वाह, क्या बात है, सबको याद रह गया. ठीक है, तो वो हमने जो सीरीज पढ़ी इसके पहले, रिएक्टिविटी सीरीज, उसका काम क्या है, हमको क्या सीखने मिल रहा है उससे? हम यही सीख रहे हैं ना कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, तो कभी भी कोई भी रिएक्शन जब होता है तब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उसकी जगह ले सकता है. ठीक है, सपोज AB है और C है, पर अगर C B से ज्यादा रिएक्टिव है तो C B की जगह ले लेगा, AC बन जाएगा, B को निकाल देगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, C over here, that is called a displacement reaction. Displacement reaction means when a more reactive metal displaces or replaces a less reactive metal from its salt, this reaction is known as displacement reaction. सेम एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड ओवर हियर. ये AB है और ये C है. इफ C इज मोर रिएक्टिव देन A, तो क्या किया, A को अलग कर दिया और C भी साथ में हो गए, क्योंकि C A से ज्यादा रिएक्टिव था. सो हियर वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा, हाँ ओके, सो ये है हमारा पोटेशियम, जिसको हम सिंबल में लिखते हैं K, राइट. ये हो गया पोटेशियम. और अगर ये हमारा A है, A क्या रखेंगे, गोल्ड रखें? नहीं, गोल्ड नहीं रखना, फिर सोडियम. ठीक है, कोई बात नहीं. तो इसको हमने कर दिया सोडियम. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप बताइए मुझे कि इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा? सोडियम है या पोटेशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव? सोडियम सबसे ज़्यादा. आप रिएक्टिविटी सीरीज बोलोगे फिर से? याद है अभी परिन सर ने क्या करवाया? हाँ, तो आप हाँ बोलिए. जो भी आपको फाए वो बोलो. पोसो भाई का माल वाला फारा है, हाँ तो बोलो. पोसो भाई का माल इतना याद रह गया आपको. ठीक है, पो इज फॉर, सो इज फॉर सोडियम. और हमने क्या बोला, ऊपर सबसे वो आता है जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है. धीरे धीरे जैसे नीचे जाएंगे तो वो कम रिएक्टिव होता जाएगा, लेस रिएक्टिव होता जाएगा. तो अगर यहाँ पे हमने सोडियम लिखा, यहाँ पे पोटेशियम लिखा है, तो दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए? पोटेशियम. वेरी गुड. सोडियम नहीं, सोडियम विल बी लेस रिएक्टिव. ठीक है, अगर मैंने बेरियम लिया होता बेटा, बेरियम लिया होता मैंने, तो सोडियम उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना. ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में ये इसकी जगह ले लेगा और इसको अकेला छोड़ देगा. मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम बी प्लस सोडियम. यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में, ऑब्वियसली नॉट हियर. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. These are the different types of chemical reactions where you have to use the reactivity series.
जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी अभी, उसी के सारे रिएक्शंस दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, Zn और H2SO4. H2SO4 किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? एसिड. सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या हो गया? कौन सा एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिंक डिस्प्लेस हो रहा है. किसकी जगह ले रहा है जिंक? हाइड्रोजन की जगह ले रहा है. क्यों, मुझे आप बताइए. जिंक हाइड्रोजन की जगह क्यों ले रहा है? अरे अभी तो आप आंसर्स दे रहे थे, बताओ ना. मल्हार आप बताइए. रुको. अच्छा, आप कब से यहाँ पे जवाब दे रहे हो? आपको क्या पूछूं मैं? यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जिंक और हाइड्रोजन के बारे में. तो जिंक कहाँ पे है पूरी लिस्ट में? यहाँ पे. और हाइड्रोजन का है यहाँ पे. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हुआ. जिंक हुआ. हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिंक है. तो यहाँ पे हियर, यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, H2SO4 दिया है, एंड वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? जिंक आ गया. क्यों आ गया? बिकॉज, मेरे साथ बोलो, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. वेरी गुड. नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो आप बताइए कि यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? जिंक प्लस CSO4 मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड. नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है बेटा. कॉपर सल्फेट है. फिर क्या होगा बेटा? मतलब मैम दोनों में से कौन सा बड़ा है ऐसा? बड़ा है? मतलब कौन भाई बहन है, बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा मतलब कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है वैसा? ज्यादा. हाँ, यहाँ पे ये जस्ट एक्सप्लेन मी दैट इफ दिस आर द रिएक्टेंट्स, व्हाई आर यू गेटिंग दिस प्रोडक्ट्स. क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, पर किस चीज का हो रहा है और क्यों हो रहा है ये समझाओ. यस रुद्र बताइए. मैम सल्फेट की जगह है ना जिंक ने ले ली, क्योंकि सल्फेट कम रिएक्टिव है जिंक से. सल्फेट ने किसकी जगह ले ली? जिंक की जगह ले ली. ना, जिंक ने सल्फेट की जगह ले ली. जिंक ने सल्फेट की जगह ले ली. ऐसे कैसे? सल्फेट कोई एलिमेंट है क्या? सल्फेट इज सल्फेट एन एलिमेंट? सल्फर इज एन एलिमेंट. सल्फेट इज नॉट एन एलिमेंट. तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? जिंक है. और दूसरा ये क्या है रुद्र? ये सल्फर कैसे होगा बेटा? Cu लिखा है यहाँ पे. हमने यहाँ पे क्या देखा था? Cu क्या था यहाँ पे? क्या लिखा है हमने? कॉपर. वेरी गुड. तो फिर यहाँ पे क्या होगा? जिंक और कॉपर की बात कर रहे हैं. विच इज मोर रिएक्टिव? कॉपर. जिंक. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? बोलो श्री अम्बे माता की. आप पढ़ने नहीं कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ. So zinc is more reactive than copper, which is why it is taking its place and Cu को निकाल दिया, कॉपर को निकाल दिया. याद रह गया ना? बस. तो फिर ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. कौन समझाएगा मुझे? ग्रंथ समझाओ. यस. हाँ. Ag है. Ag क्या होता है? सिल्वर. समझा दो एजी का मतलब. हेलो मैम, आप फ्रेम में ही रहिए, तो क्या माइक पास रहे. हाँ ठीक है सर. ठीक है. तो बच्चों याद करो,
ट्रिक है याद करने की, ठीक है। एजी और एयू मतलब कि सिल्वर, जब एक इंडियन पति और पत्नी की जोड़ी होती है तब पत्नी पति को कैसे बुलाती है? एजी, आप कहाँ हो, तुम्हें क्या सो एजी, पत्नी टू पति, एजी लोकल मतलब इधर इंडियन कपल्स क्या बोलते हैं? एजी, एजी फॉर सिल्वर। जबकि फॉरेन में कैसा होता है? ए यू कम हियर, ए यू क्या है बच्चों? गोल्ड। ए यू क्या है? गोल्ड। बोलो श्री अम्बे मात की जय। रिवीजन बनता है एजी फॉर सिल्वर एंड एयू फॉर गोल्ड। बाय। ओके ग्रंथ, कंटिन्यू योर एक्सप्लेनेशन फॉर सेम। एजी पता चल गया, एजी क्या है? अब तो जिंदगी में ना भूले भाई। सिल्वर, मैम सिल्वर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये है कॉपर। तो क्या हो रहा है बताइए? मैम कॉपर यहाँ मैम सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नो मैम यहाँ पे कॉपर होगा मैम, होगा होगा। नहीं 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 होगा। नहीं होगा, सॉरी सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, नहीं होगा। जी 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 जी, ओ वर्ड्स बैक मत लो, वापस दे दो। वो डिस्प्ले हो गया। डिस्प्लेस यहाँ पे क्या है? फिर से कहाँ पे है रुद्र? गोल्ड, गोल्ड है, सिल्वर। गोल्ड यहाँ पे और सिल्वर उसके ऊपर है। तो एजी कौन सा है? ये वाला। और कॉपर था, कॉपर कहाँ है? हाँ उसके एग्जैक्ट तो फिर So who is more reactive? Copper is more reactive. So copper will displace. ओके नेक्स्ट लास्ट, ये आरव समझाएगा हमें। कॉपर है और जिंक है हमारे पास। आरव जी बताइए। अरे क्या नो रिएक्शन, समझाने तो दो उसको। क्या नो रिएक्शन? पोसो भाई को याद करो। कॉपर की जगह ले लेगा। यहाँ पे बेटा ये आंसर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है ये आंसर ही है। आरव याद कर पोसो भाई का माल। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, लेकिन मैं जिंक ज्यादा reactive है। कॉपर से, दैट इज परफेक्ट। इसलिए कॉपर जब जाएगा जिंक के पास कि भाई मुझे वो जाना चाहिए, तो जिंक ला तुम्हारी बोलेगा कि हूँ। बराबर है। तो इसलिए क्या हुआ? एक चींटी गोई नो रिएक्शन। हाथी के पास झगड़ने जाती है। केपी जो वाली में जो थे। चलो खत्म करें। थैंक यू सो मच गाइस।